Do you know answer for this question? Okay, Ashi is not responding. Kavya. Kavya Kochetta. Your question is, who encouraged Babur to attack India? Yes, ma'am. Who encouraged Babur to attack India? Who encouraged Babur to attack India? Yes. Okay, Bhakti. Bhakti Porwal. Aditi. Okay, so let us move to the next one. No one is giving me answer. अगर आप लोग आंसर लर्न नहीं करेंगे उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी क्योंकि आप टेस्ट में कुछ नहीं लिख पाएंगे. Okay. From question number 9, who was Akbar's regent? अकबर का regent कौन थे? What role did he play in the politics of the time? और उन्होंने उस टाइम की पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले किया था? क्यों जरूरी थे वो? अकबर ट्यूटर बैराम खान, अकबर के जो ट्यूटर थे जिनका नाम क्या था? बैराम खान था. He was regent of अकबर. आपने आंसर्स लर्न किए हैं. ओके, तो मुझे सुना दीजिए. हैंड रेस कीजिए पहले. किसको आंसर याद है? रेज योर हैंड. रिजवान. ओके, अनम्यूट Yes, ma'am. yourself. Okay, so the first where was the first English trading post established in India? The first training post established in India was in Surat. Okay, one more question beta. Yes, ma'am. Akbarnama and N.I. Akbari are autobiographies of which ruler? Akbarnama. Ma'am, one more time question repeat. Akbarnama and N.I. Akbari are autobiographies of which ruler? These are autobiographic of Akbar. Okay, very good. One more question, last one, okay? Yes, ma'am. Which Mughal ruler brought almost the whole of India under his control? Akbar brought almost the whole of India under his control. Very good, excellent beta. Thank you, ma'am. ओके, ऐसे ही आप पढ़ाई करो. इस बार फर्स्ट आपको ही आना है, ठीक है? Yes, ma'am. Thank you. ओके, वेरी गुड. So let's move to the same question, that is question number 9.
Who was Akbar's regent and what role did he play in the politics of this time? अब अकबर के रीजेंट कौन थे और उन्होंने उस टाइम की पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले किया था? अकबर के एक ट्यूटर थे जिनका नाम बैराम खान था. He was regent after Akbar's coronation in 1556 CE और वो अकबर के रीजेंट थे जैसे ही अकबर का कोरोनेशन हुआ, जैसे ही वो किंग बने, राइट? कब बने थे वो? 1556 CE में बने थे. He became the वकील of the kingdom with the title of खाने खाना और वो अकबर की कोर्ट के वकील बन गए थे और उन्हें एक टाइटल दिया गया था खाने खाना. He became powerful while ruling in Akbar's name. वो अकबर के टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि वो अकबर की बिहाफ पर रूल करते थे. One of the major achievement of his regency period was defeat of Hamu, the vizier of the Su dynasty, and the Afghan force in the Second Battle of Panipat, who posed a serious threat to the Mughal Empire. अब उनने बहुत मेजर अचीवमेंट क्या थी? उन्होंने हेमू, एक किंग था सू डायनेस्टी का, वजीर था सू डायनेस्टी का, उसे हराया था. अफगान की जो फोर्स थी उन्हें भी हराया था. दो डायनेस्टीज को या दो फोर्सेस को उन्होंने हराया था. हेमू जो सू डायनेस्टी के थे और अफगान फोर्स को हराया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मुगल एम्पायर के लिए बहुत बड़ी थ्रेट थी. ठीक है. Now, Akbar tutor Bairam Khan was in regent after Akbar's coronation in 1556 CE. He became Vakil of the kingdom with the title of Khane Khana. He became powerful while ruling in the Akbar's name. One of the major achievement of regency period was defeat of Hamu, the vizier of the Su dynasty, an Afghan force in the second battle of Panipat, who posed a serious threat to the Mughal Empire. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9. मेरी आवाज किस किस को प्रॉपर नहीं आ रही है या सभी को मेरी आवाज आ रही है या कोई प्रॉब्लम है? इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन यू कैन रेज हैंड. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हैंड प्रेस कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं. ओके, जिन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बेटा मे बी आपके फोन में नेटवर्क इश्यू है, तो एक काम कीजिए, आप नेटवर्क कनेक्शन है, जो मोबाइल डेटा है, इंटरनेट कनेक्शन है, उसे ऑफ करके वापस ऑन कर लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, मुगल एंड राजपूत एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस. अब मुगल और राजपूत के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, मतलब शादी का जो रिलेशन है वो हुआ था मुगल और राजपूत के बीच में. हाउ डिड मुगल सराय यूज्ड दिस टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द किंगडम. और इसके कारण कैसी स्टेबिलिटी आई थी, कैसे सिचुएशन स्टेबल हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी. The Mughal knew that they had reigned over the Rajput king to ensure stability of their empire. अब मुगल्स को ये पता था कि वो राजपूत किंगडम के ऊपर जीत जाएंगे, राजपूत से जीत जाएंगे और उनका जो एम्पायर है वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. Therefore, besides conquering the area of Rajputana and including Rajput king into Mughal service, और उन्होंने क्या किया, राजपूताना को कॉन्क्वार करने की बजाय उन्होंने राजपूत को उनके अंडर मुगल सर्विस में इंक्लूड कर लिया. दे एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस, और जिसके अंडर वो मैट्रिमोनियल अलायंस में उनने रिलेशनशिप बनाया. दिस इंश्योर्ड कॉपरेशन ऑफ राजपूत एंड हेल्प द मुगल टू एक्सपांड द कंसोलिडेट देयर एम्पायर. और जिसके कारण राजपूत ने मुगल को हेल्प की ताकि वो अपने एरिया को और ज्यादा एक्सपांड कर सके, बढ़ा सके और कंसोलिडेट कर सके, स्ट्रॉन्ग बना सके उनके एम्पायर को.
सो मेरे साथ आप लोग भी रीड कीजिए आंसर को। द मुगल न्यू दैट they had to win over Rajput kings to ensure stability of their empire. Therefore, besides conquering the areas of Rajputana and inducting Rajput kings into Mughal service, they entered into matrimonial alliance. This ensured cooperation of Rajputs and they helped the Mughal in expanding and consolidating their empire. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें किसी को कोई डाउट? If anyone is having doubt, next, how did frequent transfer of official ensures administration? Now, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता था उसमें ऑफिशियल्स कैसे इंश्योर करते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो इफिशिएंट हो रहा है, मतलब उसमें कोई लूप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन इज ऑनेस्ट टू देयर किंग, तो वो कैसे इंश्योर करते थे? So the system of frequent transfer of official after a period of 3 years on average helped the Mughal in checking the official. अब वो क्या करते थे, उनके ऑफिशियल्स जो थे, उनके जो हेड्स जो थे, उनको हर 3 years में क्या करते थे, चेंज कर देते थे, जिसके कारण मुगल ये चेक कर सकते थे कि उनके अंडर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो चीटिंग ना करें। The official did not became complacent and could not gain control over the region. और इसके कारण जो ऑफिशियल्स थे, सिंस वो हर 3 साल में चेंज हो जाते थे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मतलब 3 years उन्हें लग जाते थे, लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते थे, बिकॉज दे वर नॉट स्टेशन्ड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि उन्हें ज्यादा समय तक एक प्लेस पर नहीं अपॉइंट किया जाता था, हर 3 साल में चेंज कर दिया जाता था, तो हर तीसरे साल एक नया ऑफिशियल रूल करता था। ठीक है, तो मेरे साथ रीड कीजिए। द सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स after a period of 3 years on average helped the Mughals in checking the officials. The officials did not become complacent and could not gain control over the region because they are not stationed at one place for long period. ठीक है, नेक्स्ट, राइट नोट ऑन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें कुछ लिखना है। बाय द एंड ऑफ अकबर रेन, अकबर के जो रेन था, उनके जो रूलिंग टाइम था, उसके एंड में he established elaborate offices with specialized function assigned to the heads of office. अब उन्होंने एक ऐसा elaborate ऑफिस बना दिया था, एक ऐसा स्पेशल सिस्टम बना दिया था जिसके कारण वो क्या कर सकते थे, अच्छे से रूल कर सकते थे। The appointment, promotion and termination of these officials were subject to rulers' personal preference and whims. अब किसी भी ऑफिशियल को अपॉइंट करना, उसे प्रमोट करना या उसे निकालना कौन कर सकता था? जो किंग है वो खुद, उसकी खुद की पर्सनल इच्छा से, वीम मतलब उसकी पर्सनल इच्छा है ना, उसकी मर्जी से। द एम्पायर अंडर अकबर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 प्रोविंसेस। अब अकबर के अंडर एम्पायर को कितनी प्रोविंसेस में डिवाइड किया था? 12, एंड दे वर कॉल्ड एज सूबास, और उसे हिंदी में क्या कहते थे? सूबा कहते थे। ईच सूबा वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ सरकार्स, और सूबा को फर्दर डिवाइड किया जाता था सरकार्स में, एंड
their further division into परगानाज and महल्स। और जैसे पहले सूबास में डिवाइड किया जाता था, फिर सरकार्स, और सरकार्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, परगानाज एंड महल्स। The officers joining the Mughal military service were known as मानसाब। अब वो ऑफिसर्स जो मुगल मिलिट्री ज्वाइन करते थे उन्हें क्या कहते थे? मानसाब कहते थे। एंड द सिस्टम वाज नोन एज मानसाबदारी सिस्टम, और उस सिस्टम को क्या कहते थे? मानसाबदारी सिस्टम कहते थे। टोडरमल डेवलप दी जब्ती सिस्टम, और टोडरमल जी ने क्या किया था? जब्ती सिस्टम का डेवलपमेंट किया था, एक नया सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज कॉल्ड जब्ती सिस्टम। इन ऑल दीज ऑल लैंड्स वर मेजर्ड एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, पोला, पराउती, चाचर एंड बंजर। 4 तरीके के लैंड्स को उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, ओके, मेरे साथ रीड कीजिए। बाय द एंड ऑफ अकबर्स रेन देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलॉबरेट ऑफिसेस एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन assigned to the heads of offices. The appointments, promotions and termination of these officials were subject to rulers' personal preference and whims. The empire under Akbar was divided into 12 provinces called subas. Each suba was divided into a number of sarkars, and these were further divided into fargans and mahal. The officers joining the Mughal military service were known as mansabs, and the system was known as mansabdari system. और सिस्टम को क्या बोलते थे? मानसाबदारी सिस्टम। टोडरमल developed the Zapti system. In this, all land were measured and divided into 4 classes: pola, Parauti, Chachar and Banjar. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वॉज औरंगजेब्स रूल डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेसिडर्स। अब औरंगजेब का जो रूलिंग करने का तरीका था वो उनके प्रेसिडर्स, मतलब उनके जो पीछे जितने भी किंग थे, उनके जो 4 फादर्स थे, उनके तरीकों से अलग क्यों था? अंडर औरंगजेब रूल, औरंगजेब के रूल के अंडर, द बॉर्डर ऑफ मुगल एम्पायर स्प्रेड आउट फर्दर देन इवन बिफोर। अब मुगल एम्पायर की जो बॉर्डर थी वो और ज्यादा एक्सपांड हो गई, मुगल का जो एम्पायर था वो और ज्यादा बढ़ गया। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, लेकिन इतने बड़े एम्पायर को रूल करना और डिफिकल्ट हो गया था। राइट, ही हैड टू फेस रिबेलियन, और इसके कारण उन्हें रिबेलियन फेस करना पड़ा, मतलब लोग उनसे विद्रोह करने लगे, लड़ाई करने लगे। फ्रॉम दी मराठास अंडर शिवाजी, मराठास ने किया और उसके हेड कौन थे? शिवाजी थे। द सिख, द जाट्स एंड द सतनामीज, इन लोगों ने क्या किया? रिबेलियन किया। राइट, रिबेलियन, REBELLION, रिबेलियन मतलब रिवॉल्ट, लड़ाई करना। ठीक है, दो ही रूल्ड लॉन्गर देन एनी ऑफ हिज प्रेसिडर्स, उन्होंने उनके जितने भी प्रेसिडर्स थे, उनके जितने भी 4 फादर्स थे, उनसे ज्यादा टाइम तक रूल किया। ही कुड नॉट स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को रोक नहीं पाए। राइट, विच hastened after his demise as none of his son was trained to rule, और जिसके कारण उनका जो एम्पायर था वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, और कोई भी उनका जो सन था वो ट्रेंड नहीं था, और इसीलिए उनका एम्पायर क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। अ वार ऑफ सक्सेशन ऑल्सो फॉलोड हिज डेथ, अब जो सक्सेशन का वार था, उनके जितने भी सन थे उनके बीच में क्या लड़ाई थी कि किंग हम बनेंगे, इसलिए भी उनका एम्पायर क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर फैक्टर दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण मुगल एम्पायर क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। The reason of decline of Mughal Empire were during Aurangzeb reign, due to increase in financial strain of Deccan War, the dislocation of administration,
जागीरदारी सिस्टम बिगेन टू लूज इट एफिशिएंसी। अब औरंगजेब के टाइम पे फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गए थे, मतलब पैसों की कमी आ गई थी, क्योंकि डिकेन से वार चल रहा था, कंटिन्यूस वार चल रहा था, और जो जागीरदारी सिस्टम है वो भी खत्म होने लगा था। A large number of nobles from Deccan were given mansab by Aurangzeb, which create crisis for Jagir land. अब बहुत सारे मानसाब हो गए डिकेन पार्ट में, जिसके कारण जागीर की कमी हो गई, लैंड की कमी हो गई। Then nobles vied for the important profitable jagirs, leading the corruption. अब जो nobles थे वो क्या करते थे, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जागीर के लिए लड़ाई करते थे, और जिसके कारण करप्शन चालू हो गया। देयर वॉज फंक्शनलिज्म अमंग नोबेलिटी आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। Powerful Irani, Turani, Decani and Hindustani blocks developed in the court and vied for the power in order to destabilize the central एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब बहुत सारे नए नए जो नोबल्स थे, राइट, वो क्या करने लगे, औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिपेंडेंटली क्या करने लगे, एडमिनिस्ट्रेट करने लगे, जिसके कारण जो औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या हो गई, डिस्टेबलाइज्ड हो गई। The Nadir Shah invasion in 1739 also weakened the Mughal power. अब नादिर शाह ने जब 1739 में अटैक किया, जिसके अंदर वो कोहिनूर डायमंड लेकर चले गए थे, जिसके कारण भी मुगल पावर क्या हो गया, वीक हो गया। सो दिस इज इट, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। सो योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू रीड, लर्न एंड राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14। 9 से लेके 14 तक के क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करना है और एक बार अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है? समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके, सो कल मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, लर्न करके आना, ठीक है रिजवान? ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।